Hello, dear students. Today we will talk about the most important topic, the Lac-Operon. The Lac-Operon theory, or this experiment proposed by Jacob and Monards for studying gene regulation in prokaryotes or bacteria. In which bacteria? E. coli. Now, what is Lac-Operon? Basically, Lac-Operon, it is a inducible operon. What is inducible operon? We will discuss afterwards. Generally, this Lac-Operon is switch off. But whenever this Lac-Operon induced by adding of lactose, remember it, the lactose, जब भी Lac-Operon में lactose की का एडिशन करा जाता है, then Lac-Operon will switch on. Remember it. What is the difference between the switch off and switch on? Lac-Operon will switch on when lactose disaccharide is added in it, and if lactose or disaccharide sugar is not present, then it will be switch off. Remember it. But generally, Lac-Operon will be switch off. Now question is that rise, what is the meaning of Lac-Operon? Lac-Operon का आखिर meaning होता क्या है? Lac means, lac denotes the lactose disaccharide sugar. लैक जो होता है वो डाइसेक्राइड शुगर को डिनोट करता है, एंड इट एक्ट एज लाइक अ इंड्यूसर, यानी ये एक बटन की तरह काम करता है जो पूरी की पूरी ओपेरॉन प्रोसेस को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने का काम करता है. क्लियर? नाउ ओपेरॉन इट इज़ अ, रिमेंबर इट, ओपेरॉन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है. ओपेरॉन इज़ अ ग्रुप ऑफ जीन्स. ओपेरॉन के अंडर में क्या है? एक ग्रुप ऑफ जीन्स है. विच टाइप्स ऑफ जीन्स? There are two types of groups are present in operon genes. What are they? First is known as control gene, second is known as structural genes. In the case of control gene, there are three types of genes are present here. Regulator gene I, promoter gene P, regulator gene O. Remember it. Regulator gene I, promoter gene P, operator gene O. In the case of structural gene, gene Z, gene Y and gene A is present there. Remember it. They are known as structural genes. In the case of NCERT, with the help of diagrammatic representation, we can easily find out these all things. Where are they? Have a look. This is the diagrammatic representation of the NCERT. In this NCERT, look here. Here we have a P, promoter gene P. This is promoter gene P. This is regulator gene I. This is again promoter gene P. This is operator gene O. These all are related to the control gene. ये सारे control gene से related है. Now gene Z, gene Y and gene A, they all are related to the structural genes. ये structural gene से related है. Clear? Clear now? Remember it. Now, what is the work of this gene P, promoter gene? What is the work of gene I? What is the work of gene O? What are these gene Z, gene Y and gene A? We will discuss here first of all. Then we will explain the whole diagrammatic representation or the process of Lac-Operon. Now look here. First of all, we will talk about the regulator gene I. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? रेगुलेटर जीन आई की बात करेंगे. वेयर इज रेगुलेटर जीन आई? देख लिए, दोबारा से देख लेते हैं हम फिर से. रेगुलेटर जीन आई इज हेयर. दिस इज द रेगुलेटर जीन आई. दिस वन. व्हाट इज रेगुलेटर जीन आई? रेगुलेटर जीन आई इज इनहिबिटर. याद रखना बच्चों, बहुत सारे बच्चे हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं. जीन आई इज इनहिबिटर. जीन आई क्या है? इनहिबिटर है. याद रखिएगा. क्लियर? जीन आई इज नॉट इंड्यूसर. आई बहुत बार इंड्यूसर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर आई का मीनिंग इंड्यूसर से नहीं है. क्लियर? जीन आई इज इनहिबिटर. सो जीन आई with the help of the transcription process it make repressor mRNA, and further this repressor RNA with the help of the translation process it make repressor protein, and this is an active protein.
ये रिप्रेशर प्रोटीन क्या होती है, ये एक्टिव प्रोटीन होती है जो आगे चल करके आपकी कहाँ जुड़ती है, ऑपरेटर जीन ओ से जुड़ जाती है। अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो यहाँ देखिए, दिस इज द रिप्रेशर जीन, रिप्रेशर प्रोटीन एंड इट विल कंबाइंड विद द ऑपरेटर जीन ओ। जब भी ये रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर जीन ओ से कंबाइन रहेगी तो जो लैकोपेरोन की जो प्रोसेस है, लैकोपेरोन हमेशा स्विच ऑफ की कैटेगरी में रहेगा, और जब ये कंबाइन नहीं होगी तब वो स्विच ऑन की कैटेगरी में रहेगा। रिमेंबर इट, दिस इज द मेन वर्क। नाउ सेकेंड, प्रमोटर जीन पी। प्रमोटर जीन पी क्या होता है, क्लियर? प्रमोटर जीन पी पर, मैंने हिंदी में लिखा है, प्रमोटर जीन पी पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? प्रमोटर जीन पी पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वेयर इज प्रमोटर जीन पी? बेटा आपको एनसीईआरटी डायग्राम के थ्रू भी मैं समझाता जा रहा हूँ। दिस इज द प्रमोटर जीन पी। यहाँ पर क्या होगा आपका, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहीं पर ही जुड़ेगा। क्लियर? हेयर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, रिमेंबर इट। नाउ आफ्टर दैट प्रमोटर जीन पी इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ ऑपरेटर जीन ओ, अभी हमने ऑपरेटर जीन ओ के बारे में बताया था। ऑपरेटर जीन ओ, इट ऑपरेट द लैकोपेरोन, ये पूरे के पूरे लैकोपेरोन को ऑपरेट करने का काम करता है। क्लियर? एंड रिमेंबर इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यह जीन स्ट्रक्चरल जीन को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एनहेंस भी करता है। जो ऑपरेटर जीन होता है वो पूरे के पूरे लैकोपेरोन को क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल जीन को क्या करता है, एनहेंस भी करता है कि आगे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट रहे। दिस इज द मेन वर्क ऑफ operator gene O. Clear now? Now we will talk about the structural genes. There are three types of structural genes: gene Z, gene Y, and gene A. Gene Z, it make beta galactosidase enzyme. जीन जेड होता है वो एक तरह का बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है। आफ्टर दैट जीन वाई, इट मेक परमिएज एंजाइम। याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया में अंदर लैक्टोज की परमिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हम इसे परमिएज एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट इज जीन ए। जीन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम, ये ट्रांस एसिलिटेज एंजाइम को बनाने का काम करता है। दिस इज द मेन वर्क ऑफ जीन जेड, जीन वाई और जीन ए। नाउ आफ्टर दैट, दीज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ये जितने भी तीन तरह के एंजाइम्स हमने बताए आपको, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीज और ट्रांस एसिलिटिलेज, दे ऑल आर रिलेटेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द लैक्टोज। लैक्टोज जो डाइसेकेराइड होती है ये उसके ब्रेकडाउन से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, दिस लैक्टोज शुगर इज अ डाइसेकेराइड शुगर एंड दिस डाइसेकेराइड शुगर इज break down in the presence of these different types of enzymes, just like for example beta galactosidase is present here. Then it convert into this galactose, this lactose disaccharide sugar now convert into glucose and galactose. They both are monosaccharide sugars. Clear? And bacteria use it for the development and the growth also. यानी बैक्टीरिया क्या करता है, इस ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का यूज़ अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए करता है। जब वो लैक्टोज को एब्जॉर्ब करेगा और वो इन एंजाइम्स की प्रियसिप में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटेगा तब। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द परमीज एंजाइम? अभी मैंने बताया था परमीज एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया में लैक्टोज की एंट्री की परमिबिलिटी बढ़ाता है। सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर साइड में हमें कहीं पर क्या मिला हुआ है, लैक्टोज प्रेजेंट है। ये लैक्टोज क्या करेगा, इस परमेज, याद रखना कि परमेज एंजाइम इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में पहले से परमेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, परमेज एंजाइम लैक्टोज की एफिनिटी बढ़ा देता है, यानी लैक्टोज जो होगा वो आसानी से इस बैक्टीरियल सेल की जो बाहर की आउटर वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे अंदर एंट्री कर सकता है, परमेज एंजाइम क्योंकि इसके अंदर है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ द परमेज एंजाइम which help the lactose to in the or enter the bacterial cell by the plasma membrane. So this is the main work of the this is the main role of the permease enzyme. Now after that here we have the diagrammatic representation of the lycopyrrone.
when lac operon switch on and when lac operon switch off. In next video we'll talk about these both.